hopefully coming Thursday we'll have better participation also, and we hope to increase that. We'll put up variety of programs, not only through the 25th year, but hopefully later on also it will continue. Welcome again. A few of you are old into photography, who have been doing this for I don't know how many years and have enough knowledge about doing. But what is my process and about selecting a picture, taking part in a contest or a salon later on is what I will talk about. But I want it to be a totally informal discussion with interaction with all the members participating either with questions or if they have any inputs. That will be always welcome. I don't want to make a PowerPoint presentation, and that is difficult to remember later on. And informal interaction, I feel, is a better way of learning. So, can I start? Yes. See, basically we are talking. We are having this daily contest in PSP now. So some of the members had a problem about what picture to select and put up for the contest to do better in the contest. See, first of all, whatever your pictures up, Hindi is okay, Indian English, certain words I will get stuck. So you will understand, don't worry about No, my feelings are not conveyed. That is why I have a problem. No, I am not able to English speak fluently in Marathi. Otherwise, normal conversation in Marathi is okay. So, मेरा जो मतलब मैं जब पिक्चर ये करता था शूट करके सलोन में कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट, हम लोग PSP का कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करते थे. तो हमारा एक इनिशियली ऐसा नहीं था कि हमको प्राइज जीतना है या वी हैव टू कम फर्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पिक्चर जब अपन कॉन्टेस्ट में डालते तो वी आर ट्राइंग टू सी वेयर वी स्टैंड अमंग द पीपल वी नो. Basically, first picture you will put or the second picture you should win a prize is not the point. Point is learning about how to go about doing things. So हम लोग डालते थे and बहुत बार हमारे पिक्चर रिजेक्ट होते थे. कभी एक्सेप्टेंस मिलता था. Very rarely would we get a prize suppose. So but it was all a learning. Then दूसरा एक एडवांटेज क्या होता है कि when you are doing it in a group, you are seeing other people's work. So try to inculcate what is good about somebody else's pictures into your photography. Don't try to copy somebody exactly in how to take a picture or not to take a picture, but try to good points about suppose the composition, the viewpoint somebody is using, or other things, what are they shooting about, topics on what they are shooting about. Try to inculcate those things, the good things into your photography. And this is a step-by-step process. There is no direct climbing from down to ground to top floor. You have to take the steps, and might be baby steps, sometimes could be a leap, but one thing I'll tell you, in photography there is no constant rise of the graph. It plateaus out in between where you are shooting the same thing. Nothing you do seems to be very great. But that is a plateau everybody goes through and has to go through. And I think it is in everything in life. Basically, there is no steep climb for anybody. And if there is a climb, then normally the drop is also that fast and that steep. So it's easy to take it step by step, improve, find out what your good points are and what you are missing out or bad points in your photography. Or something you are not doing it right, say either exposure or composition, or could be anything. So try to remove those mistakes. And how many of old members so will definitely be processing their pictures, but how many new members are processing their own pictures?
you all are all processing. See, one more thing, if you want to learn and learn fast, is to process your pictures. If you start processing your pictures, the amount of कोई भी एक पिक्चर लो आप प्रोसेसिंग कर रहे हो उसको टाइम कितना लगता है, क्यों टाइम लग रहा है, you will once you realize that now you will not make that same mistake while going and shooting that picture in the field, because you will realize कि अरे एक घंटा खाली वो एक पोल निकालने में लग गया था मेरे को या जो भी है fault. So once you realize that, you will next time while shooting you will make it a point to see कि पोल आ रहा है तो पोल composition में नहीं बनता, how you avoid. So those are baby steps of learning how. That is why processing also is very important to learn, because it helps you in your photography, in your selection of subject, in everything it will help. See, sometimes everybody cannot go to a very exotic place, those big, where you get very good vistas and the climate is very good, everything is perfect, picture perfect, postcard pictures you will get. Not everybody can do that. So you have to learn to see what is your vision, and you can do that photography around your house also. You don't need to go very far away from house to get exotic picture basically. अभी now we are talking about selection. तो selection में first is कि how many of you all save all your pictures, or how do you all go about it? When अगर आप बाहर जाके आए तो डाउनलोड करके आप सेव करते हैं, हार्ड डिस्क में करते हैं, कैसे करते हैं? हार्ड डिस्क. हाँ. And how do you all decide कि ये पिक्चर रखना है या नहीं रखना है? माझ्याकडे तर सगळे पिक्चर आहे. आहेत. घरावासी तरी आहेत. जो चांगला दिसतो तो टाकतो आम्ही. No, it is a good habit to keep all your pictures, because when as of where you are in your photography today, whoever is like, you might feel that no, this picture is not good, but later on 6 months, 1 year down the line, you will realize that no, I can make this picture. See, Photoshop is not manipulating and it is not something unethical. Photoshopping is a must, and every picture, whoever tells me कि मैं तो कैमरा में perfect shoot करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता, उसके बाद is lying. There is no such thing. Everybody has to process, because what we are shooting is raw. How many of you all shoot raw? All of you all. Every HB member always shoot in raw. You always shoot in raw. Next time you come, you get your camera here, so we can show you exactly what we mean now. Why shoot in raw? Because the laxity it gives you while, or the latitude it gives you while processing the picture is much higher than shooting in JPEG. So always shoot in raw, and when something is raw, then it is raw. भाजी अपन पका के नहीं खाते, nobody just eats raw. Very rarely certain things we might have raw. So raw is just to have the basic material. Then how you, with your vision, how you go about finishing that picture and converting it into art is matter. So shoot in raw, and whatever you shoot, keep it with you. Don't discard it unless absolutely blur picture है या out of focus है या it is highly overexposed or underexposed. So you can delete those pictures, but mostly try to keep your pictures. You will never know. Later on, when you revisit your pictures after some time, you might realize that I have a very good picture here and I can make it in a particular way. So save your picture. Normally, what we do is save it twice. Once on the hard disk, and one on a portable hard disk. So even if your computer crashes sometimes, or you need to format or whatever, so all your pictures are not gone. So save it twice at least. One on a portable hard disk and one on your computer. Then after you have, one more thing you must do is, after you come back from a trip, whatever trip it is, either to a trip or whatever, name your folder.
So you know exactly where to search your picture next time you think of it. If you are, then it will be like a hunt pro which you will go mad and you will give up. कि अरे नहीं मेरे पास नहीं है ये picture. रहता है पर it is not saved in the right manner. So come and give it a name. Then till you know processing, just keep giving names of ये trip, वो trip, how many hours, whatever days, whatever it is. Then once those are done and you have the pictures with you, like I told you, blur picture, overexpose. See, if you are shooting raw, one time overexposed and underexposed pictures can also be salvaged if it is within the boundaries. Where you can correct those pictures and bring out the details in it, unless it is highly overexposed or highly underexposed. So that is why shooting raw. Raw helps you to put your vision in the picture and complete it in a way which you want to show to the audience, and not exactly as it was shot. And Nikana is one thing, finishing and taking it to a point where it becomes like an art picture is something different. So that is why shooting raw. And तुम्ही घेऊन या तुमच्या व्हिडिओ तो विल शो यू एनी ऑफ आवर ओल्ड मेंबर्स कैन शो यू and always shoot in raw. Even mobile also we can. Mobile also you can shoot raw. हां ते मला मोबाईल सांगता Even there is नाही, also त्याला drawing limit technique. आहे. मोबाईलमध्ये असतो. इथे वरती काढूनच दिले बघ. ते सॅमसंगचं So, ते ॲप्लिकेशन पण आहे हां ॲप्लिकेशन पण आहे हां सॅमसंगच्या फोनसाठी एक ॲप्लिकेशन पण आहे फोटो रॉ म्हणून त्याच्यात रॉच फोटो आहे. हां हो. त्याचा क्रॉस फोटो ओके. आणि JPG पण काढू शकतात. नाही, ते तर आहे. सॅमसंगच्या फोनवरती आता बरेच लोकांना सोशल मीडियावर पोस्ट करायची सवय आहे. दॅट इज वाय शूट जेपॅक प्लस रॉ. तो जेपॅक तुम्ही सोशल मीडियासाठी यूज करू शकता. तुमचं फटाफट इमिडिएटली अपलोड होतं. आणि रॉ कीप इट सेपरेटली. आणि रॉ प्रोसेसिंग मग एकदा शिकले की यू कॅन डू वंडर्स विथ युअर पिक्चर. Once the vision is developed, once you have an idea of what you want to make the picture into. So it's like basically first shoot, save it in folders. After folders, whatever absolutely pictures which you feel के ये कुछ काम करने थोड़ा shake हो गया या out of focus हो गया या whatever. So you can check those. Secondly, now see we are putting pictures in contest. Now you all by एक साल होने आया by now. This is very basic I am talking about now. Then probably you go to the next level where you are participating in national contest and salons and all that. So amongst PSP I will talk about first. You all know who the judges are, what their likes and dislikes are basically. एक थोड़ा टाइम के बाद समझ जाता है ये जज को ये पिक्चर ज़्यादा पसंद आता है, ये वाला पिक्चर नहीं पसंद आता. एंड सी दैट डजंट मीन कि योर पिक्चर माइट बी बैड एट दैट, बट अकॉर्डिंग टू द जज दैट इज नॉट हिज लाइकिंग. जज का लाइकिंग भी कैसा रहता है? इफ यू नो कि द जज इज इंटरेस्टेड इन मैक्रो सपोज, तो इफ यू ट्राई टू पुट मैक्रो यू बी द मोस्ट स्ट्रिक्टेस्ट बिकॉज ही इज क्रेजी अबाउट मैक्रो. तो उसको थोड़ा भी नहीं 19-20 चलेगा. But if you put something else which he doesn't do, he has not done so many pictures, he has not seen so many pictures. So if you put those pictures, probably he might accept it or like it. If only winning is your aim, I am not saying do it all the time and do it with every judge, but that is a way of it. Somebody who wants to get accepted or feels good कि यार मेरा picture accept हो गया, मेरा picture को prize मिला, तो do it. Basically, I will say treat it as a learning. This is not the end of competition, but at the same time, I will encourage every member to compete with some member in the society. Because that is the way you will grow as a photographer. It's like अरे इसको अगर आज मिला है तो कल मेरे को मिलना चाहिए, और उसके लिए मेरे को क्या करना है वो मैं करूँगी या करूँगा, whatever it is. Don't feel dejected, don't give up. This is also, if anybody's played sports, in sports it's like no, you play to win.
You might lose in the end and you have to congratulate the winner. But you always play to win, and to play to win you have to study everybody's work, what they are doing, why their pictures are getting prize, why my picture is not getting a prize. And that is how you shoot and that is how you select. You once you realize कि ये करके इनका picture regular आता है, there might be one or two members जिनके picture regular select, they might be very old members who have a good body of work करके भी होता है, but try to reach their level. So automatically see even if it is competition, it has to be healthy and friendly competition, but there should be competition. Then only you will improve. If you say ना कि नहीं ये जज को समझता है मेरा पिक्चर अच्छा था पर दिया नहीं मेरे को, that doesn't work. Don't find faults in the judge, find fault in your picture. Once you find fault in your picture, you will learn better. So that is one way. Then if we take it to the next level, international salons. National salons are, you have normally 4 topics. See which salon is there. कौन से अभी कलकत्ता का salon रहेगा तो they are more into montage. If you are not doing मतलब 3-4 picture मिला के एक picture बनाना, तो if you all are not good at it, don't attempt also because you will always be rejected. They are far better in montaging than any one of us here. So you have to study those things कि ये salon कहाँ है, कौन judge है, फिर ये salon के पिछले record you go over, वो पढ़ो देखो कि why what type of pictures, उनके बुकलेट आते हैं salons के, तो वो देख के मालूम पड़ता है कि अरे इनको तो ये टाइप के पिक्चर ज़्यादा पसंद है, ये करेंगे तो अपना चांसेस ज़्यादा है. Then in the daily contest also or any contest, if somebody is winning award or acceptance, don't try to copy their picture or try to get a similar picture next time. What is your input, your idea in that is more important. And everybody is unique and everybody has art in their self. It is to bring it out, how you bring it out and how fast you bring it out is what matters. So nobody is not born with any talent, ऐसा होगा नहीं है, पर लोगों को how to bring it out या कैसा ढूंढ के निकालना वो कभी-कभी मुश्किल हो जाता है, उनको या टाइम ज़्यादा लग जाता है. Some do it faster, but everybody has it. So study everybody's work, but do your own work. Don't try to copy के अरे वो उसका मिला था वो प्राइस तो मैं भी वैसा मेरे को आज दिख रहा है मैं ले लूँ, तो it will always be a copy. You will never be happy and neither will you win any contest or salon meeting. So try to put your originality with it and what you regular दिखते हैं जो पिक्चर उससे हम अलग क्या कर सकते हैं आज के दिन में, या हमारा खुद का क्या इनपुट डाल के हम वही चीज़ को अलग वे में कैसा दिखा सकते हैं, कोशिश करना है सबने. तो ऑटोमेटिकली ये आपका पिक्चर एक्सेप्ट होने लग जाता है. देन ग्रेजुअली एज यू ग्रो इनटू इट तुमको भी रियलाइज होता है कि अरे ये वाले मेरे पिक्चर नहीं आते बराबर, या इन दिस आई हैव टू इम्प्रूव, या ये टाइप के मेरे पिक्चर्स बहुत अच्छे बनते हैं. तो देन यू सिलेक्ट दोज पिक्चर्स, ट्राई टू पुट दोज पिक्चर्स. अभी कमिंग बैक टू डेली कॉन्टेस्ट, I will come back to it. Means you start from the base and gradually go up. Once you have downloaded your picture, उसको नाम दे दिया, जो एकदम खराब थे वो निकाल दिए. Then you sit with your picture in front of, and just keep looking at it. Which are the pictures which attract you the most? Why? फर्स्ट ओनली अट्रैक्ट, उसको है ना मार्क करने चालू करो कि ये 5 स्टार है, ये 4 स्टार है, ये 3 स्टार है मेरा पिक्चर. वॉट एवर रीजन वो दिल बोलता है आपको क्या हाँ ये बहुत अच्छा दिख रहा है, ये दिस इज नॉट सो गुड. सो अकॉर्डिंगली मार्क दोज पिक्चर. वंस यू हैव मार्क those pictures, you can do it on field also nowadays. Most cameras allow you to
sometimes while shooting only you realize कि ये मैंने कुछ मेरे को आज special मिला है. When you realize that, mark it. So that is already in your good folder. ना? Gradually as you build your portfolio, you have to make folders. फिर 5 star का folder, 4 star का folder. And see whatever अभी कोई भी outing जाके आए हैं अपन, तो उसके बाद when you are downloading the picture, decide कि अभी some shoot more, some shoot less. तो जो less shoot करते हैं समझो 50 shoot के, तो मेरे top 10 कौन से? वो keep looking at your mind, your heart will tell you, your mind will tell you first, then your heart will tell you also कि yes ये वाला अच्छा है. तो once those pictures are marked, separate them and put it in another folder. के 5 star folder, 4 star folder, whatever name you are want to give, you can give that. Out of that, then again open only those pictures and again keep looking at it. You have to not keep looking till you realize कि नहीं ये initial खुशी था पर नहीं it is not still इधर फिर भी ये mistake है. If that mistake can be corrected in Photoshop, then good enough. But suppose it is something which you cannot correct it. Then ask yourself कि ये picture देख के normally you should do it while shooting only. कि when you are shooting you ask yourself ये composition जो मैं बनाने वाली हूँ या बनाने वाला हूँ, ये बनाते वक्त मेरे को दिल में कौन सा वर्ड आता है जो tells me कि अरे हाँ ये ऐसा है अभी serene, silent, active, joy, sorrow, जो भी वर्ड आता है, कोई वर्ड आता है तो that means your composition is good then. It should come from within, possibly कुछ करके वो हमने नहीं बनाया. And when it is really good वो आता है अंदर से, you can something tells you कि अरे this is good or this is very good, whatever. So if you can put a word to your picture, automatically any audience who sees that picture will also react towards it. Might use a different word than the word you thought about, but वो reaction तो रहेगा ही रहेगा उसका. So those are the kind of pictures then you start separating in a higher folder ना, where you know कि ये मेरा picture नहीं है, story convey कर रहा है, ये दिख रहा है, that feeling is there. Then if you can inculcate a story in your picture, means बहुत सारे टाइम ऐसा एक्चुअली कैंडिड शॉट रहता है, पर अभी जगदारी जी के भी he does quite often journalistic type of photos, but there is a message or a story that is seen in his pictures, and he has that knack from the beginning. It is inbuilt in him. Not everybody has it. Somebody might have some other. So if your picture is talking about a story, अपन को देख के ही ऐसा लगता है अरे ये दोनों का कुछ बात हो रहा है, ये बारे में होता रहेगा. या once the viewer starts thinking about कि क्या अरे क्या बात है, why this one is like this or why that is like, कभी बंद दरवाजा है तो अरे वो दरवाजे के पीछे कौन रहेगा, कौन ऐसा किसका घर. Once those thoughts start coming in the viewer's mind, now that means your picture is good. So you have crossed that first barrier where ऐसा है कि अपना पिक्चर कुछ तो स्टोरी बोल रहा है. तो those are the pictures you start separating and putting in a higher folder, where you know if you done process well and done everything properly, you might win a prize or a acceptance or whatever. So gradually you have to, but I would always suggest that whoever shoots should learn processing of his own. Unless you learn processing, you will never shoot great pictures, because you don't know what mistakes you are making. You will never correct those mistakes. So processing helps you to learn कि अरे ये 1 घंटा 2 घंटा लग गया वो खाली इतना सा प्रॉब्लम निकालने को, तो अगले बार वो ध्यान रहता ही. तो process your picture, keep this folder. Then like I said, अभी salon level पे आए तो area wise हर एक सिटी का एंड जजेस का लाइक्स एंड डिसलाइक्स अलग रहता है. सम सिटी लाइक आई टोल्ड यू अबाउट कलकत्ता, राजस्थान इज लाइक मोर दे कलरफुल also, and they
are pretty open about all the topics. If you go to Bangalore, they are more into birding. उनके जो दिग्गज लोग उधर क्या ज़्यादा करते हैं, बर्डिंग करते हैं, एच सतीश है तो अभी वो बर्डिंग करता है तो उसके पिक्चर ज़्यादा देखते हैं वो लोग, तो सबको ऐसा लगता है मेरे को भी बर्डिंग करना है, वो बर्डिंग करना है तो उधर लाइक्स ज़्यादा बर्डिंग को मिलेगा उसको, और देन अदर काइंड ऑफ पिक्चर्स डोंट वाइल्ड लाइफ पिक्चर्स, ऑल दोज पिक्चर्स, आर्ट पिक्चर्स एट टाइम are pushed aside. Pictorial pictures, pictorial you understand. Pictorial you understand. It's like basically you can say pictorial picture can be once in a while art pictures. Art pictures are top of the pyramid. Pictorial picture just one step down where composition is good, everything is very good, colors are good. Exposure good, everything, but there is a soul, but something slightly lacking. So those people can accept those kind of pictures also, Rajasthan and all that. South का absolute South का बहुत कम participate मतलब सलोन होते हैं and अपने यहाँ ज़्यादा मालूम नहीं पड़ता है. It's more of North, West and Calcutta. And then international salon will come much later where the levels are pretty high. Once you have make a body of work, एक पहले aim for 50 pictures, 50 top quality pictures. ऐसे then gradually aim for higher and keep collecting and like make a solid collection where then you can participate regularly. So this literally I hope you have got an idea about what, how to. It is like technical details तो absolutely necessary. Technical details के बाद exposure is should be good. ये दो चीज बराबर हुआ तो then composition आपने कितना अच्छा किया है. There are multiple rules of composition जो शायद सबको मालूम है. तो how many are incorporated in one picture? The stronger your picture will become. कभी-कभी एक single composition element भी use करके you can make a great picture, but it is not very often. It has to be an exceptional picture. So how to make compose pictures also is very important. As much as Photoshop, composition also matters. And then that story ना क्या अरे वो मेरे को जगह नहीं था, मेरे पास वो ये लेंस नहीं था, या वो अचानक वो आ गया. All those are stories which are not going to help your pictures in any context. Anyway, so anybody will write a big story about ये picture कितना भारी है, उसको color toning इतना भारी किया तो ये बन जाता, वो बन जाता. वो picture आप लोग कहाँ भी डाल दो, सलोन में डालो, contest में डालो, किधर भी हो, it is not going to win you anything. If there are flaws, and any judge is not going to then know anybody's name also. कि कौन है, there is no bias at all. It is not good, it is put in the trash bin. And you have to have the courage to accept that कि हाँ मेरा picture was not good enough, it is put in the trash bin. So the sooner you learn that, the better you will be in your photography, because then you know कि हाँ you learn to accept your mistake. If you don't accept your mistake, then you will keep repeating those mistakes again and again. So don't be afraid. आज नहीं जीत रहे तो कल मैं जीत के दिखाएंगे या दिखाऊंगा. Should be your aim बस. And how to work towards it is look at other people's work, look at what they are doing, why their pictures are getting selected, why they are not getting selected. From not getting selected also you learn more than getting selected, because you have then can number the mistakes कि हाँ ये mistake था वो उसके लिए नहीं select, तो remove them automatically and that is how you improve. Yeah, this is about sums up. Anybody has any questions you all can ask and we will go on. और एक सजेशन देना है, जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो इंडिया में जो कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, नॉर्थ में होते हैं, साउथ में होते हैं, कलकत्ता पर्टिकुलरली और बॉम्बे के, उसके जो इंफॉर्मेशन जो है वो आप
कोई तो कलेक्ट करते होंगे, तो अपने जो सोसाइटी का जो चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें वो थोड़ा डाल दिए तो हमको मालूम पड़ेगा कि Okay. कौन से कॉम्पिटिशन है। वो करेंगे अभी वो चालू किया तो अच्छा रहेगा। मारुति भी 10-15 साल तो बारिश समझ रहा है सलून का Manuji to be मालूम है nowadays the kind of apps that are available on phone also are fantastic, but at what result are you trying to process that picture? Are you trying to do it only for the daily contest, or are you going to upload it and participate with that picture in a national digital contest? You have to first, all those ideas should be clear in the head, so you will make your picture accordingly and properly and participate. So one thing I tell you, don't try to hurry anything. It takes time. It goes step by step. Some people will reach faster, some will reach slower. Your aim should be to reach wherever you want to reach, and work towards it. Automatically, give it time. Don't try to rushing too much. Also doesn't help, because basically you should get imbibed in your psyche about how to shoot, how to process, how to do everything. So once that is done, once that vision is developed, then you don't need help. आप आजू बाजू घर के किधर भी every day you make one great picture at least. And we used to talk about that earlier. I will tell you again कि हर आउटिंग में गए तो don't expect कि 100 पिक्चर शूट किए तो 90 पिक्चर अपने बहुत एकदम टॉप क्लास निकलने वाले नहीं होता है. एक पिक्चर भी निकला 100 में से तो बट दैट शुड बी एब्सोल्यूट टॉप क्लास. ओनली वन पिक्चर, एंड इफ यू आर डू वन पिक्चर अ वीक ऑल्सो, so in the year you have 52 pictures. 52 pictures are good enough to hold an exhibition of your one person solo exhibition. So work like that. Don't try to. Every picture cannot be the best, and anybody who says कि मैं तो जो लेता हूँ तो एकदम विनर रहता है, is all humbug. नहीं होता है कि multiple time. And again I have seen कि lot of people, when new people, I'm not talking about like when you all are shooting in the field, you all are fixed with one format. Horizontal है तो horizontal ही है. You all don't take another picture. You all walk away from the scene. Take a horizontal, take a vertical, go close, go far. वो सब्जेक्ट पसंद आया तो उसको पीछे लग जाओ उसके, छोड़ो मत उसको till you have a winner. And see it from all angles. Don't see it from इधर से दिखा ठीक है पसंद आया, अपन क्यों पसंद आया, what is it telling you, then go around. उधर से और अच्छा आएगा क्या मेरा पिक्चर, ये एंगल से और अच्छा आएगा क्या, where is the light coming from. Take your time, but एक सब्जेक्ट पसंद आया तो उसको छोड़ के जल्दी एक पिक्चर लेके निकल मत जाओ. तो वो इंग्लिश में बोलते हैं वर्क योर सीन करके, where you all go around, keep different point of views, different perspective, and try to shoot the best picture out of the subject, whatever held your attention. Yeah. You recommend any software for the processing? Photoshop is the Everybody is, best. Photoshop is one of Adobe CC. How does they charge monthly? There is a monthly subscription in there. You can see old. I still work with the CS6, which was Very 10 old. years old, 15 years old. I am happy with it. What is my requirement? My requirement, if can be fulfilled by CS3 also, I will use CS3. We are not into something. See, most are hobbies, and most are doing it for the relaxation, the hobby part of it. So you try to excel at it. There is no doubt about it. And like I said, you all should compete against each other to excel. But at the same time, अगर अपना काम CS3 या CS6 से हो रहा है तो एकदम एडवांस को लेना जरूर नहीं.
camera also I will suggest that whoever, now everybody has one, but if any new member is coming, I will always suggest don't go for the best and the most expensive camera on day one. You don't need it. छोटे कैमरा से भी उतना ही अच्छा काम होता है. It is your vision that matters ना. So first develop your vision, realize what you are good at, what your requirement is, and then go and buy a camera. I have notes if anybody wants, or I can give you all. You all can go through it. I have marked certain. Absolutely, I have covered most of those. These bullet points. In this, there is. I marked the important points. If somebody wants to go through just to see how. Can you make Xerox of this? I can give you a Xerox next time I come on Thursday. I will bring it. Whoever will have to tell me what I want, then I will take out only that many copies because I don't want to waste paper. क्या है Notes about how to select your picture. All what I spoke about is in bullet points. Some put differently, some थोड़ा इधर उधर. PDF करके शेयर करो. It's better. That is not my strong point. Computer and all that. नहीं, But हाथ से लिखाइए. नहीं, मैंने I just searched. What I liked, I picked up from the net and. नहीं, इसमें direct Just you can share ना. ideas were in my mind, but I wanted to go point by point. That is why I will give this only ना. इसका ही Xerox निकल के देता हूँ, कुछ problem नहीं. हाँ. It is basically those simple things only what we mentioned, but I will tell members who are new and are keen to learn, get your notebook, write it with your own hand. Very important. When you write on your own, you will remember those things. When you listen, you don't remember as much as you will write. When you write, you will. And we, when हमारा PhD में learning होता था, तो हम लोग notebook लेके आते थे, स्कूल में बैठे वैसा पेन से लिख के घर जाते थे. वो those things you will not forget. And then, like I said, processing चालू करो, processing से बहुत कुछ सीखने मिलता है. You realize what mistakes you are making in the field. और composition आपका automatically सुधरते जाएगा because वो तकलीफ नहीं बनता है बाद में Photoshop में. तो you next time while shooting only you will see the viewfinder properly. You can scan this and put it on the. हाँ, वैसे हाँ, नहीं scan करके वो word file में. Maybe that is the purpose. नहीं एक्चुअली और इसको word file में है. The notes are सभी आपके पास कौन सा word file में है? That way I just search. I Anyway, what you have printed, that you can you share it in the group? This स्कैन करके मैं WhatsApp ग्रुप पे डाल दूंगा चाहिए तो फोल्डर. हाँ, वो अच्छा रहेगा. हाँ, वही. So that everybody can. While I will tell you again, if you all are sitting on the computer and reading and holding a paper in your hand and reading makes a big difference. वो कंप्यूटर में बट आप इतना बजे कितना फोटो प्रिंट करने से पूछ रहे हाँ नहीं आपको इतने लोग I don't need. Color आणि black. why should you take अभी आपका ये जो एडिट तो प्रिंटआउट लिया ये प्रिंटेड ये वर्ड फाइल में ही होगा ना ये I don't know यार what file you are calling. What file could be. I don't know. हाँ तो उसमें वो भी शेयर कर सकते हैं ये सब मिला के PDF बना देंगे. One was PDF and तुम्हाला सांगतो सगळे सोपं मोबाईल आहे ना मोबाईलमध्ये फोटो घ्या प्रत्येक पेजचा आणि स्कॅन सोपं आणि मग ते झेरॉक्स काढून घ्या होता. मोबाईलला स्कॅन करा तुम्हाला मी ते पाठवतो. मोबाईलला स्कॅन करा किती सोपं स्कॅनर असेल तर ते scanner. मोबाईलमध्ये स्कॅनर असतं ना त्याच्यामध्ये हे बघू black and white color. मला
ती आता एकच कॉपी आहे ते बघायला नाही, नाही, फक्त हां. ॲनिमल आहे. हां. हे फारच त्यांनी एफर्ट्स घेतले त्यांच्या If you are telling something, I feel that the point should be driven through तोही फायदा आहे तो then this exercise should mean something. एक जन को भी फायदा हो गया तो I'm happy. नहीं, एक जन क्यों सब फायदा लेंगे? It is individual के ऊपर भी डिपेंड होता है लेवल ऑफ एक्सेप्टिंग एंड नॉट एक्सेप्टिंग. नहीं, वो तो बराबर है. But if everybody learns, I'm absolutely happy. But my aim is that anybody it helps, it is worth it, even if it's a single person. हे माझ्याकडे आम्ही स्कॅन करून PDF करून पाठवतो. सगळ्यांना झेरॉक्स जरी काढून घेतले. And actually, some pictures are in color which will make, but I just printed black and white because I was not interested in the picture, only the matter. The matter is important and the picture. And if anybody wants any matter on any subject, I am one hard is full which I half of it I might never have seen through, but if anybody wants on any topic, I might have it. So if you all want and you all need it, you all can approach, I can help you out. While learning now, you tend to collect a lot of things. ये भी लो, वो भी लो, because you are not sure what is actually going to teach you or not teach you. But as time passes, then you realize that this is what I need. Even or nowadays this that is too much. nowadays PDF books are available. Photography book, proper photography books are available on PDF that can be directly downloaded. And if you want to purchase, they will be around 5,000 or 6,000. Correct. But their PDF version is also available. Some of the But books- how many people will actually sit and read? Tell me, I doubt. No, yes, of course. And we are referring book. And there are, when you have it in your hands, it makes a big difference. Then, लेकिन उसमें क्या है, अगर एक पुस्तक किताबों लाने के जाएंगे ना 6-7 हज़ार है नहीं बराबर है। तो हाँ People have पाहिजे पुन्हा वाली एक ही पुस्तक है। 4-5 I wanted to tell members that I have certain books on photography also. I'll put up the name. Anybody wants can refer to it and give it back to me, and we can rotate it among members whenever whoever wants, like a library system now. Whoever likes a particular topic, and if I have it, I'll give it to what we can do, आपण क्या करूया, सगळ्यांकडे एक हे नोटिस डालेंगे, जिसके पास अगर फोटोग्राफी बुक है और वो शेयर करना चाहते हैं तो डालिए करके, यानी सभी के पास कुछ ना कुछ होगा. नहीं, I have given them last time they had come to my place ना, तो anybody wants जो मेरे पास है वो मैं circulate करने को तैयार हूँ. मेरे पास भी एक बुक. हाँ, तो if you are willing to share, just put the name of the book. Anybody interested in that topic can take it from them. फोटो डालेंगे. है? जो पिक्चर है बुक से उसके फोटो डालेंगे. हाँ, आपण काय करू बेस्ट की आता तुमच्याकडे लिस्ट करू एक PSP मेंबर लिस्ट ऑफ बुक्स आणि मग एनीबडी नाव तुमच्यानी तुम्ही टाकलीत ना, नाव तुमच्याकडे पुस्तकाची लिस्ट टाकली की बाकीच्यांनी कॉपी करून त्यामध्ये ऍड करायचं. तुमचं नाव आणि खाली पुस्तकं, नाव आणि पुस्तकं असं ऍड करत जायचं. म्हणजे ते लायब्ररी कलेक्शन आपल्याला कळेल तुमच्याकडे काय काय पुस्तकं. जब भी थर्सडे को आते हैं तभी लेके आने एक्सचेंज करने के लिए. Now every Thursday we have a program. This number त्यावेळी घेऊन यायचं. 3 Thursdays we'll have program here, and one week we'll be having an outing. पहले The month 4th program minimum every month. अभी दिखती नहीं है. And there will be offline programs. Later on, Manoji will, as according to his convenience and when he is ready, he will have one offline on a Saturday also. So there will be 4 or 5 programs every month. I have one question related to today's topic. Yes. जो सवाल नहीं पूछते हैं या लोग हैं ना, तो जो मैंने बहुत पहले आज से 20-25-30 साल पहले जब मैं भी इनिशियल स्टेज में था,
तो वही मुझे ये सवाल आता था, मैं क्या पूछूं, हाँ क्या पूछूं, मैं समझ में नहीं आता है मैं क्या पूछूं। उस वक्त भी जजेस बोलते थे आप पूछो तो हम बताएंगे, नहीं तो जजेस क्या बताएंगे, है ना। लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि सवाल क्या पूछे। और आई थिंक कि मैंने ये बहुत सारे लोगों के साथ अभी भी होता रहेगा, भाई सवाल क्या, ठीक है पिक्चर अपने एक्सेप्ट हुए नहीं हुए, या प्राइज मिला, अवार्ड मिला नहीं मिला, अगर मिला तो ठीक है, सवाल ही सब खत्म हो जाते हैं। अवार्ड मिला तो सवाल सब खत्म हो जाते हैं, नहीं होते होने नहीं चाहिए। हाँ। दैट यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो होने नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है, हाँ। ठीक है। और अवार्ड नहीं मिला और एक्सेप्ट नहीं हुआ तो समझ में नहीं आता है कि सवाल क्या है। इसके तो लिए उसके लिए कुछ गाइडेंस अगर हम किसी को, जो बेसिकली है ना, हर एक का एक तो विजन अलग है। तो जैसा मैंने बताया, पहले तो डाउनलोड करो, फिर उसमें जो एकदम खराब है वो उसको निकाल दो। वो होने के बाद जो टेक्निकली थोड़े करेक्ट दिख रहे तो वो सेपरेट करो, फिर उसमें कीप लुकिंग एट इट, कैसा है अपना अंदर जो है ना। हम आई एम टॉकिंग अबाउट आस्किंग क्वेश्चन टू जजेस। नहीं लिसन ना, वो जब वो स्टेप्स फॉलो करते हैं ना तो हाँ। ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन भी दिमाग में आएंगे कि तो पहले तो अंदर खुद का विजन क्या है ना वो बाहर लाना इज इम्पॉर्टेंट। हाउ दे गेट इट आउट will vary from individual to individual, and every time the judge might not be able to help. Why? Because आज जो पिक्चर सपोज उनको फर्स्ट प्राइज मिला, आपने बोला वो खत्म हो गया, प्रॉब्लली वो दिन पिक्चर ही लायक नहीं थे, दूसरे करके फर्स्ट मिला। वेदर इट इज द बेस्ट पिक्चर at on that particular contest, on that particular day, in that particular judge's eyes, that was the best picture, but not necessary कि it is the best. आगे बड़े कंपटीशन में गिर सकता है तो फिर डिसअपॉइंटमेंट नहीं आना चाहिए। दैट इज वाई खुद का विजन तैयार होना चाहिए कि पहला मेरा पिक्चर कौन सा अच्छा है एंड काय को अच्छा है, वो खुद को जवाब देने लग गए ना तो ऑटोमेटिकली फिर किसकी मदद नहीं लगेगी। या फिर अगर लगा भी तो मैं जैसा बोला, अमंग मेंबर एक्सचेंज आइडियाज, एक्सचेंज पिक्चर, बात करो अभी आपका किसके साथ पड़ता है, समझो दो एक जन के साथ, तो उसके साथ बात करो, उसको पिक्चर भेजो तुम्हारा, अरे तुमको ये मेरा पिक्चर कैसा लगता है, तो उसको ये उसको उसके पिक्चर मंगाओ, तुमको उसके वो वाला पिक्चर क्यों पसंद आता है, ये वाला क्यों नहीं पसंद आता है। ट्राई टू आंसर योर खुद के दिमाग में, तो सवाल ऑटोमेटिकली आएगा, फिर अपने आप को ही सवाल आएगा। नहीं समझता है तो सवाल आएंगे, समझ गए तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पर खुद को है ना, यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ टू लर्न ना, वो स्पून फीडिंग से नहीं होगा। नहीं, हम भी एक डालते हैं ना, अभी जो भी अपना जो समझो थीमेटिक रहेगा, हाँ। उसमें जज के पिक्चर रहते हैं, हाँ। वो भी देख के कुछ जज अलग अलग हमने क्यों रखा है कि जो भी जज बनेगा उसके हर इसमें 5 पिक्चर रहेंगे, यानी जो भी 5, 6, 7 रेफरेंस, जो भी रेफरेंस के लिए, तो वो भी देख के उसके भी अलग अलग रहेंगे। तो इसलिए वो भी ये किया है कि जो भी जज बनेगा उसके कंपलसरी पिक्चर चाहिए, वो उसी जो थीमेटिक रहेगा, क्योंकि वो थीमेटिक करता है, हर हफ्ते करता है, तो अलग अलग पिक्चर उसके पास भी रहेंगे। जो जज बनता है उसके भी पिक्चर हर एक मेंबर देखेंगे कि क्या पिक्चर है, कौन सा जज है, यानी हर बार जो भी 3, 4, 14 जज है तो उनको भी जो भी मेंबर है उनको अलग अलग पिक्चर देखने मांगते हैं, यानी देखने को मिलते हैं अलग अलग कि कौन कैसे कर रहा है, कौन से थीमेटिक है, कौन से ऊपर समझो ब्लैक एंड वाइट रहेगा तो सब ब्लैक एंड वाइट जो भी थीम रहेगा वो, तो उनके भी पिक्चर देखने में ये पीएसपी में रखा है, क्योंकि बाकी के इसमें नहीं, जज कौन रहेगा वो कुछ उसका कुछ ये नहीं। जो अभी कैसे ये आप भी पार्टिसिपेट करते, आपसे भी हम कुछ अलग सीखते हैं, समझो ये तो अलग सीखने को मिलता है हर जज को भी, उसको सीखने को हाँ। मिलता है। मेनली विजन अलग रहता है, तो अब अभी भी देयर इज डिसअपॉइंटमेंट इन द डेली कॉन्टेस्ट टीचर्स, द पीपल हैव नॉट रियलाइज्ड वन टॉपिक विल हैव इज ऑन कॉम्पोजिशन ना। कॉम्पोजिशन अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत सारे लोग ना, मतलब
लिटरली यू कैन एट टाइम्स फील के these are record shots ना ऐसे ही, तो that should not happen. तो अभी रेगुलर अगर कोई अपने मेंबर्स ही नहीं सवाल कर रहे हैं तो एटलीस्ट वी विल ट्राई टू गिव देम सम गाइडलाइन अबाउट. नहीं अभी क्या करेंगे, रेगुलर प्रोग्राम चालू नहीं, रहेगा ना तो थोड़ा जजिंग भी थोड़ा स्ट्रिक्ट करेंगे. स्टिक करेंगे. हाँ. ये इंटरैक्शन से ना सीखने बहुत बहुत मिलता है. मिलेगा, हाँ. इफ यू आर अवेयर एंड अवेक ना तो यू तो जजिंग भी थोड़ा होगा. स्ट्रिक्ट कर थोड़ा टाइम देंगे हो हाँ. जाएगा. हाँ लेकिन ग्रेजुअली कंपोजिशन इज सो वास्ट ना कि एक सिंगल फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ओनली कैन टेक अ होल लेक्चर. लाइंस, तो लाइंस के ऊपर हाउ लाइंस कैन बी यूज, नॉट ओनली ऑर्गेनिक लाइन, इनऑर्गेनिक लाइन ऑल्सो कैसा व्हाटएवर. सर मैं अभी हम आउटडोर जो सोच रहे हैं, एक दिन हम आउटडोर जाने का हाफ डे या वन डे के लिए. हाँ हाफ डे है या तो ये तो बोल रहे हैं कि कभी कभी ऐसे ही 2 घंटे के लिए हम लोग चल 2 सकते हैं. घंटे के लिए निकल वो हम जाते हैं तो क्या करेंगे, जिस दिन आउटिंग हम जा रहे हैं ना तो हम उसका आउटिंग का ही सिर्फ कंपटीशन रखेंगे. हाँ वो तो वो भी अच्छा है. समझ में आया? अभी मान लीजिए हम पुणे सिटी में गए, सुबह 2 घंटे के लिए गए, उसका ही कंपटीशन रखें. तो अगले सैटरडे को या अगले दिन का है ना, उस दिन का फोटो का हम ये रखेंगे. मैं तो सोच रहा था कि अभी एवरी आउटिंग जो होगा उसका मंथली कॉन्टेस्ट होगा. हाँ वो आउटिंग वो भी अच्छा है. वो बढ़िया है. वो सीखेंगे क्या. और ज़्यादा वीडियो चाहिए ना वो. मेनली क्या होगा वो स्लाइड शो भी करेंगे उसका. तो सभी दिल्ली का जो कॉन्टेस्ट है ना जगदार जी, जो दिल्ली का जो कॉन्टेस्ट है, तो एक दिन हम मान के चलिए ये संडे को हम आउटिंग के लिए गए, बराबर है, तो अगले मंडे का जो दिन रहेगा ना उसमें क्या करने का, सिर्फ जिस दिन आउटिंग के लिए जो लोग आए थे उनके लिए वो कंपटीशन रहेगा और वही दिन का फोटो रहेगा. What you are saying is right कि we should have a contest for outing people. पर एक डे पे करना वो अभी किसको नहीं जा सका कॉन्टेस्ट नहीं, आउटिंग को, ठीक है ना, तो वो ये कॉन्टेस्ट मिस हो जाएगा. नहीं, इसका मतलब क्या है, इससे क्या हो जाएगा कि you are come for the एग्जैक्टली अगर हम 10 लोग अगर आते हैं साइट के लिए या तो साइट में इसके लिए आते हैं, आउटिंग के लिए आते हैं, तो उसमें से वही सब्जेक्ट रहेगा ना, सब्जेक्ट तो वही रहेगा, तो उसमें से हमको पता चलेगा कि मैंने क्या फोटो किया, आपने सेम What you are saying is right. What how to go about it is slightly different because एक कॉन्टेस्ट डे पे अगर आउटिंग का कॉन्टेस्ट लिया आपने, सेपरेट ले रहे तो बात अलग है. खाली वो लिया तो क्या होता है, बाकी जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा. तो सेपरेट लेते हैं ना, Separate सैटरडे लेते हैं. संडे हम करते ही हैं. ये आइडिया अच्छा है कि मंथली कॉन्टेस्ट में उसको क्या करना ये कर सकते हैं. जो मतलब वही हो गया, मंथली करेंगे नहीं तो क्या होगा, जो पार्टिसिपेट रहेगा वी कैन हैव अ स्लाइड्स तो एज वेल एज कॉन्टेस्ट माने साइमल्टेनियस. जो आउटिंग करेंगे ना उसका मंथली कॉन्टेस्ट रखने का और उसका स्लाइड शो भी रखने का. चलेगा. पहला स्लाइड शो होगा फिर कॉन्टेस्ट होगा. तो अभी समझो 10 लोग गए, कोई बोलेगा अरे मैं भी उधर ही खड़ा था, मेरे को ये पिक्चर नहीं दिखा. क्यों नहीं दिखा? तो बिकॉज आई वाज थिंकिंग समथिंग एल्स. अरे इसलिए तो इसमें से ये निकाल के लाया और मेरे को तो दिखा भी नहीं. दैट इज लर्निंग. So we'll do a slideshow and a contest on the outing. Yes. कि हमने ऑलरेडी प्लान किया था. It will be a dedicated separate. और वो पहले डिक्लेयर करने का, आज का आउटिंग का कंपटीशन भी रहेगा, प्रेजेंटेशन भी रहेगा. नहीं तो पहले डिक्लेयर है, अभी अब से सब आउटिंग ऐसे ही ऐसे करेंगे. करेंगे. हाँ वो भी चलेगा. और वो जो मंथली आउटिंग रहता है ना हमारा जो, वो सारे आउटिंग ऐसे ही करने वो आउटिंग का स्लाइड शो होता है ना, वो सीखने मिलता है. वो यू वंडर के अरे मैं भी उधर ही खड़ा था पर मेरे को ये नहीं दिखा. क्यों नहीं दिखा? नेक्स्ट टाइम नो योर माइंड स्टार्ट वर्किंग कि अरे ये भी देखना चाहिए, वो भी देखना चाहिए. बहुत फर्क पड़ता है.
मानव जी को मालूम है। हाँ बहुत सारे हैं। नहीं हम उधर एक ही जगह पे खड़े रहते और अलग अलग फोटो आते हैं। सबसे पहले तो हम आउटिंग को जाते थे, जहाँ सेल्फी जाते थे हम पहला निकलते, हाँ। उसी जगह सेल्फी बाजू में गए तो हम वहाँ जाते, लेकिन हमारा पिक्चर और उसका पिक्चर कभी टैगिंग नहीं। Like why it doesn't happen? Everybody का thinking अलग है. What focal length I am using, he doesn't know. Composition अलग है. He doesn't know. He is composing something else. He is seeing something else. horizontal पकड़ा है, vertical पकड़ा है। हाँ, तो that is why also मेरे को मेरे बाजू में कोई खड़े रह के फोटो निकाला मेरे को बुरा नहीं लगता है, because वो उसके विजन से शूट कर रहा है, मैं मेरे विजन से शूट कर रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं ना कि भाई समझो सैफी भाई खड़े हैं, वो फोटो निकाल रहे हैं, हम भी जाके उधर ही देख रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं तो हम दूसरा माने मिस करेंगे ऐसा। आप हाँ आप ऐसा मत करो, आप आपका देखो, आपका खुद का अलग अलग देखो। सैफी भाई को भी लगना चाहिए अरे संगीता भी यहाँ पर थी तो उसको ये देखा, मुझे क्यों नहीं देखा, मैंने ये होना चाहिए। और 7 लोग अपना ट्राइपॉड लगा के एक ही लाइन में खड़े, लेकिन 7 लोग उनका पिक्चर हम लोग स्टूडियो इवनिंग करते थे, स्टूडियो इवनिंग में हम लोग यहाँ पर अरेंज करते थे, सब दिखाते थे, फिर भी उसमें भी फोटो अलग अलग ही आते हैं। पहली कॉम्पोजिशन से शुरू होता है। कॉम्पोजिशन से ही पहले शुरू हो जाता है। लेंस के ऊपर कॉम्पोजिशन डिपेंड होता है, तो लेंस ही अगर अलग यूज कर रहा है, कॉम्पोजिशन बदला, वो बदला तो सब बदल गया, कुछ भी सेम नहीं रहता है। दोन मिनिट बसा ना, एक बार नाही इंट्रोडक्शन करू नका, नाव आपल्याला नंबर नाही ना एक्सक्यूज मी, ये एजीएम में नहीं थे अपने कॉन्टेस्ट में, इनको जो प्राइस लगा है ये दे दो सीनियर नाव वाचून द्या. हा नाव वाचून घ्या. आपण काय करतो जे काही पॉईंट असतील त्यातून बेस 3 काढतो महिन्यातून महिन्याला आपण यो आप रमेश भाई उधर ही रुकिए, ये आएंगे वहाँ पर। नाव वाचा, नाव वाचा योजना दिसले। हाँ यहाँ पर दोनों जन ऐसे खड़े रहिए, हाँ और दिखाइए मेडल। वाह फोटो कशासाठी मिळालं ते सांगा ना आम्हाला. डेली कॉन्टेस्ट मग 3 टॉप आपण महिन्याचं अवॉर्ड करतो, मोर एन्करेजमेंट टू एव्हरीबडी. पुन्हा सर्टिफिकेट ग्रुपसाठी हे सर्टिफिकेट समोर आणि मोमेंट तुमच्या हातात. ग्रुपमध्ये टाका. एक मिनिट वो स्लाइड शो करना है, स्लाइड शो करना है ना, टाइम है अपने पास। अभी जो जा रहे हैं ना, एक इनका सजेशन हम लोगों ने डिस्कस किया तो ये थे कि एक अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दें सब जो नया है, और एक ग्रुप फोटो ले लें और उनको क्या एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट दे एक्सपेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम दे एक्सपेक्ट, वो एक छोटा छोटा 2-2 बात बोल के फिर हम लोग स्लाइड शो करते हैं। हाँ हाँ एक मिनट आप आइए यहाँ पर रुकिए। कांचन जी आप थोड़ा वहाँ सरक जाइए। हाँ अभी ये जगह खाली करते हैं, सब यहीं पे आके, ताकि कैमरे को घुमाना नहीं पड़ेगा। अच्छा क्या है कैमरा? हाँ रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। आपको जाना है राइट, तो प्लीज़ आप आइए, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और
ग्रुप जाने से पहले राजेश, ग्रुप फोटो ले लो. हाँ, group photo ले लेते हैं. मेंबरशिपची कॉन्ट्रीब्युशन किती आहे? फीस काय आणि त्यांनी आता सांगितले 3 वर्षाचे हा, मी 3,000 3 रुपये वर्षाचे होते. सांगतो. मी इंट्रोड्यूस केलं हो का? केज मॅडमच्या ह्या मॅडम एवढे जुने आहेत आपले member. खूप जुनी आहे मध्ये मी हा, मध्ये येत नव्हते. जुने लोक ओळखतात. जुने लोक आणि आपल्या प्रत्येक अॅन्युअल डे असतं. हा, मेन प्रोग्रामला असतात ते. एक फॅक्टर नाही आपल्या PhD मध्ये एक मिनिट एक मिनिट इंट्रोडक्शन मी संजीव बेंद्रे 22 वर्ष फार्मास्युटिकल मॅनेजमेंटमध्ये होतो. त्यानंतर फोटोग्राफी व्यवसायामध्ये होतो. आता मी पूर्ण वेळ योग शिकवतो. आता मी प्रोफेशनल फोटोग्राफी नाही करत, आनंदासाठी फक्त फोटोग्राफी करतो. लाईनची लावून माझं नाव जयदीप लिमये. माझं एक छोटंसं वर्कशॉप आहे. मी इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स बनवतो आणि फोटोग्राफी फक्त हॉबी म्हणून. रामनाथजी, नेक्स्ट आपला 24च्या प्रोग्रामचं पण सांगा. नेक्स्ट वीकचं पण सांगा. 15. नहीं, इनको तो हो, नया नए मेंबर जो हैं वो हां, देसाई. हां, देसाई सर तुमचा इश्यू. व्हेरी गुड फोटोग्राफर. नमस्कार, मी विजय देसाई. लँडस्केप फोटोग्राफी करतो गेले अनेक वर्ष आणि हिंदुस्थानातील बहुतेक सगळे फोटोग्राफी ही फार जुनी गोष्ट आहे, पण मी मुंबई ते कन्याकुमारी पायी प्रवास केला आहे. जाने से पहले तुम फोटो ले लेते हैं. ले लिया. हो गए ना सबका. रामनाथजी एक information टाका. आता मोबाईलने शूट केलेलं आहे आमच्या ऑफिसच्या बाहेर रस्त्यावर पाऊस पडलेला आहे. मी लाईक आय वॉज सेइंग की पिक्चर्स आपण कुठं पण बनवू शकतो. यू डोंट नीड टू गो एकदम एक्झॉटिक प्लेसेस, स्पेंड लॉट ऑफ मनी टू क्रिएट पिक्चर. स्टार्ट. ये अपने मंथली कॉन्टेस्ट के हाँ, सर. हैं, डेली कॉन्टेस्ट के. डेली कॉन्टेस्ट. डेली कॉन्टेस्ट के फर्स्ट वाले ओनली फर्स्ट. हां, नमस्कार. जय मी वाट पाहतो. हम लोग वो सॉरी आई एम लेट, वो पीछे वाला जो ब्लैक एंड व्हाइट था ना बसला आहे. आली आहे. सभी सर, इसमें थोड़ा और इम्प्रोवाइज करना है तो क्या कर सकते हैं? नहीं, इट इज अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ना अगेन, बट आई वुड नॉट कट द टाज लाइक दिस ना. हाँ, ये जो एक साइड का कट कर दिया. व्हाट इज योर सब्जेक्ट, द ताज और द लेडी? ओके. Ask yourself, and then if it is the lady, she is not in focus and she is merged with the Taj. And Taj is also getting cut. So I would not compose it like this. So फक्त पॉइंट ऑफ व्ह्यू वेगळा आहे. खाली बसून वाईड अँगलनी शूट केलेलं आहे. समटाइम्स आई फील ह्यूमन एलिमेंट ऐड करने का भी जरूरत नहीं रहता. वो खाली बट डिस्टर्बेंस होता है. माई लुक I mean, my way of seeing it, not everybody might agree with it, but that is okay. Basically, इधर वो लड़की ऐड करना नहीं काम नहीं कर रहा है. वो ताज का भी मजाक है और लड़की का भी है. क्या है, हेरिटेज ही हो ताजमहल, वर्ल्ड हेरिटेज. तो कम से कम इथे रेकॉर्डिंग चालू है. ये होना. Yeah, next. ओके. ये एक्सेप्टेड एंड I think accepted है. ये first Okay. नाही, हे प्राइज विनिंग आहे ना. नहीं. ये mix झाले असेल. ये this is not प्रशांत first काय prize. प्राइज विनिंग आहे नाही. नाही तर नहीं. I don't think that. ये mix झाले. हे आपला एक आउटिंग मधलं साहित्य पिक्चर आहे. मडेगाव. हां.
नाही ते याचा प्रॉब्लेम आहे प्रोजेक्टरचं लेन्स खूप जुनी आहे ती. पुढे बसा ना सर, पुढे बसा. एनिबडी पुढे जाणार. आणि एनिबडी क्वेश्चन प्लीज आस्क. टेबल टॉप आहे या ऍक्च्युली टेबल ऍक्च्युली टेबल टॉपच्या ऊपर मी हे बना हाँ बनाते हैं आजकल क्या क्या करते आपण केलं होतं नाही. हा हा माझा पिक्चर एकदा कलवा पेठचा एक वाडा आहे ना, त्या वाड्यामध्ये गुढीपाडव्याची शूटिंग बघितलं. मोठा वाडा आहे पाहण्याजोगा, आपण एकदा आउटिंग काढूया. जगदार जी एक चीज बोलू क्या? हाँ बोलिए. वो येलो जो है ना निकालने होता था फोटोशॉप. हाँ बाजू का येलो जो है डिस्टर्ब करता है, मतलब अगर बाहर देखना है तो निकालना. ये कलकत्ता गया था के कलर पिक्चर है वो ब्लैक एंड व्हाइट बना है. दक्षिण क्वालिटी बहुत मस्त है. दक्षिण पश्चिम बंगाल. घराच्या खिडकीतनं काढलेलं हे बघ संगीता गेलेलं आहे का नाही नाही फोटो काढ. साड्याचे कलर साड्याचे कलर आणि दागिने बघा. दागिने बेसिकली स्टोरी टेलिंग पिक्चर आहे ना ते काय असतो कोस्टल विलेजेस मध्ये काय चालतं मार्केट मध्ये. इट इज बेसिकली ट्रॅव्हल ऑन अ जर्नलिस्टिक पिक्चर. मोर ऑफ ट्रॅव्हल प्लेस ऑफ ते बात आहे यूकलिप्टस ट्री का ना, ये अपना दिस इज नॉट फोकसिंग सो वेल. इज बेसिकली एन एब्स्ट्रैक्ट. संगीता मॅडम जाऊन जाऊन राहील याद है जो बेसिकली एक बार पिक्चर देखा तो दिमाग में नहीं बोल रहा. This could have been processed better. Who did it? I don't know. Could be much better. ऊपर पे जगह कम हो गई. हाँ. ऊपर में स्काई में और थोड़ा जगह होना चाहिए. नहीं जगह इनफ है, बराबर है. ओनली टोनैलिटी बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं. नर्सरी सनीज रोजेस म्हणून नर्सरी. हां त्यांच्या तिथे एक व्हिडिओ आहे आणि त्याच्यावरती 25-30 सुगरण खरेदी करतात आणि ते आर ओपन. तुम्ही कधी या कधी फोटो काढा, त्यांना काही प्रॉब्लेम नाही. आयसर आहे ना पाणी
आयसरच्या अपोजिट साईडला एक गल्ली आहे आणि तिथे त्या तीन रस्त्यापासून नेहमी 200 मीटर आत गेल्यावर खूप मोठी नर्सरी आहे, गोळे आहे ते. त्यांच्या दारात एक विहीर आहे आणि हे सगळे विहिरीच्या वरती करतात ना, साप खाऊ नये म्हणून गरमी मोस्टली पाण्याच्या वरती असतात. 25-30 तरी सुगरणीची घरटी असतात आणि ते गोळेच्या ओपन तुम्हाला प्रोफेशनल करू नका, ॲमेच्युअर कोणी या. याच्यामध्ये एक क्वेश्चन आहे की पिक्चर्सचा रेशो काय मॅटर करतो का की कुठल्या रेशो पिक्चर आपण सबमिट करू? खूप मॅटर करू शकतो असतं जे आपलं असं काही restriction आहे का? पण बाहेरच्या सर्वांना डेफिनेटली असणार पिक्चर रिस्ट्रिक्शन, साईज रिस्ट्रिक्शन, रेशो रिस्ट्रिक्शन. आता हे स्क्वेअर करायची गरज काय होती आय डोंट नो. यू विल आन्सर दॅट क्वेश्चन. कोणाचा आहे? ॲक्च्युली तेवढीच फ्रेम अवेलेबल. हा कोणाचा आहे? जयदीप लिमयन. अच्छा. त्यांचे पण बरेच अवॉर्ड आहे जे आज आणायचे राहिले, तर नेक्स्ट गुरुवारी त्यांना देऊन टाकू. विवेक जोशींचा आहे. विवेक जोशीचं नाव असतं. हां आय बरोबर. हे पण फर्स्ट प्राइज आहे. आता हे पोर्ट्रेट जर म्हटलं तर आपण खाली पाय कट केले, पाय कट करू शकतो. पायचा प्रॉब्लेम नाही. मला प्रॉब्लेम आहे ते व्हाईट जे बॅकग्राऊंड आहे ना मागं ते ज्याच्यावर बसले ते दॅट इज वे द रायटर त्याचा फेस ऑल्सो तो डिफीट होतो वापस. नाही फर्स्ट प्राइज आहे. फर्स्ट प्राइज कधीच रिसेंटलीच आहे. हो का? मी नाही दिलेलं ते पण नाही. साईडने दिलं असेल तर माहिती. वाईट नको आणि कधी घेतलेलं आहे ते पण ते सबड्यू करता येते ना ऍक्च्युली. ते व्हाईटला डार्क करता येते आपल्याला. कधी पाहिलं नाही फर्स्ट प्राइज. हा मी पण नाही पाहिलं. हो. आणि देर शुड हॅव बीन सम ब्रीदिंग स्पेस ऑन द राईट. ते एकदम एजला झालंय मोबाईल. बहुतेक काहीतरी इन्क्लूड केलंय आणि मग क्रॉप करून सबमिट केलेलं आहे किंवा ग्रुप मधलं असेल. something there on the right which is chalk. तेल नाही करते ते. इट इज बिहाइंड इट्स पर्च ना, पर्चच्या मागं गेले तर दॅट इज नॅचरल. म्हणजे ऑल द टाइम ना असं आहे की तेल एवढी लांबी आणि हाफ कट केले तर दॅट इज कट. दिस इज लाईक ते ऍक्च्युली त्याचे नॅचरल एन्व्हायरमेंटवर बसलेलं दाखवलंय. त्याच्यानंतर कारवर बसलेलं दाखवलंय तर लेस व्हॅल्यू, दिस हॅज मोर व्हॅल्यू. त्या फाईलला नाव नाही, व्हॉट्सअप इमेज म्हणून आहे. See the story is good but composition is not right. ते मागं स्काय आणि हाफ कट केले. either it was not to be included or if including then तो फॉर्म पूर्ण दाखवलं पाहिजे and some amount of sky. हां ते if they have included in the composition ते पूर्ण दाखवलं पाहिजे. नाहीतर मग पाणी आणि हे सिल्हुएट तेवढंच घेतलं तरी चालतं. मग ते डोंगराचं आणि ते झाडं जे आहेत मागं त्याची काही गरजच नाही. तर कंपोज करताना ते दिसलं पाहिजे शूटिंग. मेसेज आहे की ते रेकॉर्डिंग मला पाठवा. ते US ला आहे सध्या. तर त्यांनी आज मेसेज पाठवलाय की रेकॉर्डिंग करून मला पाठवा. म्हणलं ते नंतर अवेलेबल होणारच आहे सगळ्यांना.
त्यांचं आहे ना ते कॅन्डिड पिक्चर्स खूप चांगले ते आणि गप्पा उभं राहून त्यांच्याकडे ते ब्रिज कॅमेरा आहे, डझंट कॅरी अ DSLR, पण ते ही ऑब्झर्व आणि दिसलं असं काय तर कॅन्डिड पिक्चर चांगले काढतात. हा आणि ते छोटं कॅमेरा लॉंग लेन्स ते त्याला आहे, ते यूज करून काढ म्हणजे गुड. हिअर द व्हाईट इज ओव्हर एक्सपोज, बट प्रोसेसिंग मध्ये ते यू शुड टेक केअर ऑफ दॅट. आणि बॉटम पोर्शन ते दगड जे दिसतं ना लाट आहे आयडा वन ऑफ द टू ते खूप क्रॉप झालंय, थोडंसं अजून पाहिजे कंपोजिशन. नाव वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट an individual picture, but only pictures and commenting on that. आता कोणी पण असू शकतो. पण हे कंपोजिशन काय आहे? Composition because of the candidness, the storytelling, like lonely man, for peace he goes to the beach, उभे राहतात बघतात हे सगळं ऍक्टिव्हिटी, or but composition wise he should have taken care of that white. ना white is over exposed आणि ते दगड जे ते एकदम चॉप झाले, थोडंसं अजून पाहिजे. रघु काढलेला होता हा. आम्ही शंभूमध्ये दोघं जण होतो, त्यांनी पण काढला आणि मी पण काढला. आधी यांना मिळाले, मी कधी ब्लॅक अँड व्हाईट प्रोसेस करून केलेलं. ब्लॅक अँड व्हाईट. See, what I was telling that time now, सिल्वरचा पिक्चर होतं ते असं पूर्ण आणि सम अमाऊंट ऑफ स्काय पाहिजे तर इट लुक्स कम्प्लीट. ते चॉप केलेलं नाही ते ॲज अ कॉम्पोजिशन छोटंसं पोर्शन आहे ना, पण एक्चुअली केलं नसतं तर सबिल एक मिनट, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो पिक्चर के साथ में जो कमेंट जा रहा है ना, उसमें अगर बाकी का आवाज़ अपना इंटरेक्शन होगा तो जो हमारा पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा. पिक्चर्स वरती बोला. नाही आणि हा डोंट टॉक व्हेन द स्लाइड शो और ड्यूरिंग द प्रोग्राम एट एनी गिवन टाइम इट अननेसेसरी डिस्ट्रॅक्ट अदर पीपल ऑल्सो. क्रिएटिव्ह यूज ऑफ लेन्स ना, द शॅलो डेप्थ ऑफ फील्ड ते टीचिंगच्या वेळेला पण शिकवतात की वाईड अपर्चर तुम्ही शूट केलं तर हाऊ यू कॅन. आय डोंट नो वेदर हाऊ मच दिस फर्स्ट वन इज इन फोकस because of the projector it is not so visible. If it is sharp then it is fine. It lens असल्यामुळे No, in general, there are certain contests and salons they absolutely don't want border. If you have border, picture goes out directly, whichever color. और कभी-कभी you have to be very choosy about these borders also. अभी कैसे प्रिंट करने वाले इसके व्हाइट के अराउंड ब्लैक फ्रेम जाने वाला है तो अच्छा दिखेगा. Otherwise it disturb the white borders because that is the brightest thing. तो पहिला border पे जाता है. Then because of the third element to be added, you make a picture, then white border and then the frame. Action is good, but ते लेफ्ट साईडचं स्टंप काढता आलं असतं. ते फोटोशॉप मध्ये यू कॅन रिमूव्ह इट टोटली ना, ते डिस्टर्ब करतंय हे आणि ते इट इज गोइंग आउट ऑफ द पिक्चर ऑन द लेफ्ट. तर नॉट नेसेसरी ते ठेवायची गरज पण नाही. आणि दोन्ही ठेवायचं असेल तर वेअर ते जॉईंट ना, ते जॉईंट दिसलं पाहिजे. हे मधनं कट झालं.
That was your picture, Lotus? नहीं, the previous one. Lily, water lily. Not there. ये white is overexposed. White is overexposed. You are shooting raw, or you also don't shoot raw. You shoot in raw. नहीं, see the black and white. Do you shoot in raw? पिक्चर रॉ मध्ये शूट करतात हाँ, तो then you can correct that. अगर JPEG कर रहे तो correction possible नहीं है, but if raw कर रहे तो you can correct it, and you must keep your histograms on all of your. Histogram if it is on, you realize that you are overexposing, then correct it. हिस्टोग्राम मध्ये पण हाँ. Lot of people don't keep their histogram on, so they don't realize they are over or under exposed. वो बाद में समझता है. ते समजण्यासाठीच पाहिजे. हाँ, but you should keep it on all the time. That will do the topic, but I'm just saying, okay, on the camera it should be on all the time. इसमें कुछ करेक्शन है? नहीं, अच्छा है, वो खाली ऊपर का थोड़ा दबा सकते हैं उसको, बस नहीं तो. पण असं ब्लॅक अँड व्हाईट मध्ये जर ब्लॅक पोर्शन मधले डिटेल्स नाही आहेत तर doesn't matter. They're not important to the some form is there. हे ओव्हर प्रोसेसिंग केलंय आणि द व्हाईट ना त्याला व्हाईटला खूप चांगलं आहे म्हणजे शिरसागरिफाईड टेल डोंट माइंड कोणाचा आहे विलास है वो ऐसा लगता है व्हाइट पेंट का डब्बा लेके पेंट मारो वो बहुत अगर तुमने एक्सट्रीम खींचा ना पिक्चर को तो उतना वो कॉन्ट्रास्ट था नहीं एंड देन व्हाट यू आर ट्राइंग टू शो ब्राइटनेस में कभी नहीं पड़ा था वैसे मुझे वो वाइट करेक्शन नहीं करना आता है खाली डायरेक्ट वो ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड में अभी दो ना अपन ने ना ब्लैक एंड व्हाइट प्रोसेसिंग पे प्रोग्राम करेंगे तो whoever has एक दो पिक्चर लेके आओ उसको इधर प्रोसेस करके दिखाएंगे हाउ टू डू इट करके पर इसमें वो व्हाइट ज्यादा खींच लिया है मतलब तो वो ऐसा लगता है कि somebody व्हाइट पेंट यूज किया है ऐसा इतना डिफरेंस नहीं रहता See, this again is very good, but going outside you have to be careful. ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे हाईलाइट है ना, वो नहीं दिखना चाहिए, वो उसको दबाना चाहिए, and slightly वो जो ओपन विंग है ना, विंग के बाजू में जो व्हाइट स्पॉट दिख रहा है ना, वो भी निकालना चाहिए. ये छोटा चीज मैटर करेगा बाहर के कॉन्टेस्ट और सलोन में. तो हमने इधर चल जाता है. पिक्चर बोला सर नहीं भाई. पिक्चर नाम है क्या? दिख रहा है राइट कॉर्नर पे नाम दिख रहा है. उसमें अच्छा है सामने. वो दवा डेप ज्योति पार्क अच्छा वो तो कलकत्ता में बैठी. That also leads into the picture ना, so add करता है वो. अच्छा है picture. ते शॅडो आत घेऊन जाते म्हणजे ऍक्च्युअली पिक्चर. Whether you realize while shooting or not, I don't know, but one must be your shadow only. ते शॅडो Shadow. शॅडो ना ते स्टुडंट्स इकडे अच्छा तो नाइस पण ते शॅडो ते देखतात. हाँ डेप्थ तो आई थिंक ये इधर है ना ये प्रोजेक्टर की वजह से बहुत ब्राइट दिख रहा है. ये पिक्चर बहुत अच्छा था एक्चुअली नहीं हाँ ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है. हे पण प्राइस भी नहीं है का? ते ग्रीन काढता आलं असतं ते काही गरज नाही आहे त्याची दिसतं
that color not disturb, otherwise that light is coming, and this can go in the travel category. संतोष पाटील. This is, I like this picture. मैंने दिया था इसको फर्स्ट राइट मल्टीकलर के लिए समथिंग वेरी डिफरेंटली सीन बहुत अच्छा है. फिर इसमें थोड़े फ्लॉज है तो भी वो चल जाते. एंड सेकेंडली आई थिंक इसमें ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, उसका एक्चुअल पिक्चर इतना ब्राइट नहीं है. विलास जी तुम्हारा भी शायद वो अच्छा रहेगा वो. हाँ, अच्छा है. मैं वही ढूंढ रहा हूँ. हाँ, किसका है? ब्राइट दिख रहा है. इतना bright. किसका है? एक थिगले का है, अनिल थिगले का. वो अच्छा पिक्चर है. व्हाट द आइडिया इज वेरी गुड. मल्टी कलर टॉपिक था. सी वेयर ही सीन मल्टी कलर. वेरी गुड. अच्छा कंपोजिशन बहुत अच्छा. हाँ, वो यू कैन विन अवार्ड एनीवेयर इफ यू पुट्स ना. वो अच्छा वेरी गुड पिक्चर. ये दिस इज वेरी वेल प्रोसेस ना, बहुत अच्छा है वो. किसका है? डेट जो है ना, आई थिंक वो सेम डे पे था. नहीं, मैडम का अलग था, पर उसके नेक्स्ट दिन ही किसने ये पिक्चर डाला था. आई वाज जजिंग आई थिंक फॉर पर अच्छा डेप्थ जो दिखता है ना पिक्चर में, एंड नो डिस्टर्बेंस. किधर स्काई ब्राइट स्काई ने कंपोज किया है, कुछ नहीं. इट कीप्स यू इन द पिक्चर, टेक्स यू राइट इनसाइड. दिस इज शिव सागर पिक्चर. आई वाज द जज. वेरी गुड कंपोजिशन, मस्त है. येलो में जा सकता है ये. येलो में जा सकता है, पर हाँ जा सकता है. येलो में जा सकता है. जेव्हा आपण म्हणतो की येलो स्किन मध्ये, मग जरी साईज छोटा असेल सब्जेक्टचा येलोचा तरी चालते. व्हॉट इज द फर्स्ट, डोळे बंद कर, उघड. व्हॉट इज द फर्स्ट कलर यू सी? बघ, मीन इफ यू लुक एट इट, द फर्स्ट कलर यू सी इज येलो. देन एक्सेप्ट might not win a prize outside because of besides the yellow color of the bird there is nothing else in the picture. The theme is yellow, then yellow तुम्ही कशात बघताय in a different way. This is very common. Might not accept होईल, कदाचित accept पण नाही if there is good competition. तो थीम मध्ये वापरायचं का नाही हे विचार केलं पाहिजे. outside to will not work. किरण जोशी का it is that is all processing only, but the way is processed and the way उसने लाइट मारा है, एग लाइट जो यूज किया है. These again can go and travel. सेकंड हो गए. हाँ, सेकंड हो गए. ये what is the time? We'll see second, then we'll wind up. Speed बढ़ाओ. सर याच्यामध्ये काय सांगा? Can be processed better. One actually I should sit here next to that. Can be composed slightly better. They practical. साईडला जागा नाही. This you shouldn't be cutting there. ते थोडा अजून खाली जाऊन शूट करता आला असतं का गो फॉरवर्ड अँड लोअर.
आणि देन हे जे लेफ्ट साइडला दिसतंय ना that also should not be cut. She should have gone slightly wider and still in front नंतर हे सगळं आलं. अँगल लो घेतलंच आहे त्याची पण अजून आणि थोडं वाईट थोडं पुढे थोडं स्टील लो पॉसिबल. दिस प्रोसेसिंग इज व्हेरी गुड. टोनॅलिटी एकदम जबरदस्त आहे. ते डोंट सी देअर ॲक्च्युली सी द लॅपटॉप यू विल गेट अ बेटर आयडिया हाऊ वेल ते दॅट इज व्हेरी गुड. खूप फरक आहे. Tonality is excellent. With so much of variety of light, still the tonality is great. But the way it processed it is very nice. जोशी सर, किरण जोशी, मैंने दिया है और जब याद करते हैं. ये सीधा करते हैं. हाँ. हाँ. बराबर. विदाउट सीइंग देखो ना कैसे बॉर्डर नहीं मेरे बॉर्डर पर नहीं आई डोंट नो साइड से किंवा बाजूचे हां नाही राजेंद्र नाही पण हे मध्ये काय आपला आउटिंगचा पिक्चर आहे. हो आणि द टोनॅलिटी ना खूप चांगलं केलं. नाव देअर इट इज लुकिंग मोर बेटर दॅन प्रॉब्ली इथं ब्लू स्क्रीन दिसतंय तिथं थोडं वॉर्मवर गेलं चांगलं. पण व्हाईट थोडंसं सांभाळ म्हणजे हे जे खालचं पोर्शन आहे ना व्हाईट ते थोडं टोन डाऊन केलं पाहिजे. ओव्हर आहे अदरवाईज हे जस्ट बघा ते शूट करताना लक्ष दिलं पाहिजे की शटर स्पीड किती. हे आता जास्त लॉंग झाली ना की मग वाईट स्टार्ट तर यू हॅव टू कट डाऊन युअर शटर स्पीड और देन गो ऑन अ हायर अपर्चर आयदर वन ऑफ द टू. शूटिंग वॉटरफॉल यू हॅव टू टेक इनटू कंट्रोल स्पीड ऑफ फ्लो, वॉल्यूम ऑफ फ्लो and the time you are shooting, the light you are shooting. The three factors के हिसाब से you must try multiple combination. एक फोटो लेके निकल नहीं जाना. अपर्चर कम करके शटर स्पीड फास्ट करो, शटर स्पीड स्लो करके, बिकॉज एवरी फ्लो उसका टाइमिंग अलग रहेगा. When you can see the texture in the stone behind, that is when the picture बनता है. नहीं तो वो एक white चादर के जैसा दिखेगा, which is of no use. So when the flow is little less and you can see texture behind in the stone is a good picture. Shooting waterfall. अभी आएगा तो 2 महीने में करना ही है, तो keep in mind.
ज्योत्स्ना मॅडम तुमचं आहे का विवेक जोशी वर्टिकल दिखायला हा आणि ते मागचं अजून ब्लर आउट करायचं पोस्ट मध्ये पण व्हाईल शूटिंग केलं असतं थोडं डिस्टर्ब करतात नाही तर टोन डाऊन तरी करतात पण ते चांगलं म्हणजे प्रोसेस ते वाईट पॅचेस खूप आहे मागं पुढे आजूबाजूला नॉर्मली तुम्हाला वेव्स मध्ये कधी क्रॉस म्हणून युनिक आहे त्याकरता ते सिलेक्ट केलं अदरवाईज काहीच नाही आहे you should have composed lower portion where they join. This is like chopping some part of the body. ते असतं कॉमन आहे तुमच्या फेन्सिंगला बरेच ठिकाणी I know what you are doing. As long as it is not bad. नाही मग मला तर घरापासून हो 100 मीटरवर जवळ जाऊ उस टाइम वो लाइन्स का फायर ब्रिगेड था वो सीढ़ी पे चढ़ के आपने निकाला वो नहीं तो मिलता नहीं ऐसा भी जे ऍड केले त्याच्यामध्ये ते खूप पार्ट पण डिरेक्शन ही बाजू आहे डिरेक्शन
if it was coming in ना, तर अजून then the composition becomes stronger. The boat coming towards this is it is going out. But ठीक है, it is basically ना color combination जो है which is what attracts blue and red, तो वो automatically hit करता है. तुम्ही रॉ तुम्ही तुमच्याकडे डेफिनेटली कॅमेरा रॉ साठी आणि तुम्ही रॉ मध्ये शूट करा, फरक खूप फरक पडतो. रॉ आणि जेपेक दोन्ही स्टोरी टेलिंग ते कॅन्डिड खूप चांगले शूट करतात आणि गप्पा उभं राहून लांबून मला समजत नाही, पता ही नहीं चलता कब निकाला कैंडिड बहुत और ये सब देखते हैं लेकिन वो फोटो ही नहीं दिखता है. This could have been better composed, but second in मिला, वो भी on the day. There it looks far better. Mobile में क्या है? Nice. वेगळा फुटबॉल खेळते आहे. Passion. But you can still make it better, आणलं तर ब्लॅक अँड व्हाईट प्रोसेसिंगचं जेव्हा आपण हे करू तेव्हा घेऊन या. यू ऑल रिमेंबर वॉट एव्हर किसको क्या बोला थे बाद में याद ले रहे हैं. विलास तुमचं आहे ना नाईस स्टोरी काय राबवली काय केलं पाहिजे. That bird pictures I don't like of it so much. खूप common मग if you keep repeating the same थोडं bird इकडं थोडं इकडं तोच bird तोच मासा तोच then it gets boring. So but other pictures now candidly should be quite interesting. आपण त्यांचंच आहे इकडे हो का? हो त्यांचं I am not judging. You get actual pictures. Horizon पण tilted आहे. Very nice. Very nice. Yeah, I think I don't know, I have that. Multiple compositions. नहीं, frame. There is a story. ये नया generation जा रहा है, आगे निकल रहा है, जुना generation हम बैठ गया. बहुत कुछ स्टोरी बना सकते हैं उसमें, जो मंगता वो very nice. If I get only one flaw is the behind the माणूस आहे ना, ते तो ब्लॅक पॅच काढला पाहिजे आणि पांढरा पॅच पण काढला पाहिजे. करता येईल. दाबून टाकायचं. ते नाही काढून टाकायचं, क्लोनिंग करून काढता येईल तर ते डिस्टर्बन्स पण जाणार. पहिल्यांदा विजन देतात. ते again storytelling, color, multicolor was nice. हाँ, नहीं तो डिटेल्स खूप आहे, म्हणजे प्रोसेस चांगलं केलं तर अजून भारी दिसतं.
नोटिस करो पीछे का थोड़ा ब्लर आए ना नीचे वो अच्छा दिखता है। ब्लर नहीं वो अपना इसकी वजह से दिख रहा है। अच्छा लिटरली सेम पिक्चर है, अलग थोड़ा सा शिफ्ट हो गया अलग बस। सामने क्या दिखता है हाँ तेच ना ऑन डिफरंट डेज ना थोडं पोझिशन शिफ्ट हाँ, केलं हाँ, बोला. मग ते start getting boring. They're not doing anything. अच्छा देखो गंगाधर जी तुम आजकल रिपीट कर रहे हैं पिक्चर बहुत सारे। ऐसा हुआ है? हाँ कॉन्टेक्ट में पहले आ गए थे वापस डाल रहे थे। वापस डाल हाँ वापस आते हैं वो कैसा हो मुझे समझ में नहीं आता वो क्या है वो मोबाइल निकालता तो सब तो एक अलग ही फोल्डर बना के अच्छा, अच्छा। ये मैंने डाल दिया खत्म हो गया। ये भी ऐसे कॉन्ट्रास्ट है ना साइंस एंड ओल्ड टाइप मतलब वो किधर एडवांस कितना एडवांस है और ये एकदम रस्टिक एंड ओल्ड वी सी थिंग्स डिफरेंटली ना उनका विजन अच्छा है वो मामले में।